Hello friends, so we are back with the videos of class 12 mathematics and we have already completed the chapter 5 which is continuity and differentiability. So in this video we'll start with the application of derivatives, of course. So chapter 6 will start today. Which is about application of derivatives. Application of derivatives. Right? So whatever we have learned in chapter 5 regarding the derivatives of various functions, so we'll see few applications in this chapter. Like first of all, we'll talk about the rate of change of quantities. As we know कि the differentiation process is all about finding the rate change only, isn't it? Anna? So first of all we'll talk about the rate of change of quantities only. Okay. In the second topic we'll check for increasing and decreasing functions. Okay, what are increasing and what are decreasing functions, and how can we determine with the help of derivatives whether a function is increasing or decreasing. Then we'll talk about tangents and normals. Tangents and normals, उनकी equations बनाएंगे, उनकी slopes निकालेंगे with the help of differentiation. Then we'll learn how to find the approx values in approximation with the help of derivatives. And last but not the least, we'll learn about the most important topic of this chapter, which is maxima and minima. How to find the maximum and minimum values of various functions with the help of the concept of differentiation. Okay, so these 5 topics are in your syllabus in AOD. So today we'll talk about rate of change of quantities. Okay. So when I say कि y is a function of x, that means what? कि y depends on x, correct? जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करती है वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज करती है. तो ये जो चेंज हो रहा है, इस चेंज का अगर मुझे रेट चेंज निकालना है तो मैं क्या करता हूँ? डिफरेंशिएट करता हूँ, है ना? So as I differentiate this function, we get dy by dx, or we get y dash, we get f dash x, same abbreviation है. But ये है क्या? That denotes what? क्या निकाला है मैंने क्या निकाला? Rate of change of some quantity y with respect to some quantity x, है ना? जब हम dy by dx निकाल रहे हैं तो हम एक्चुअली क्या फाइंड कर रहे हैं? हम फाइंड कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ सम y with respect to x. तो हम उसको रीड भी कैसे करते हैं? dy by dx को रीड भी कैसे करते हैं? देखो हम रीड करते हैं कि दिस इज d by dx of y. तो क्योंकि ऑफ y मैं बोल रहा हूं तो मैं उसको ऐसे भी कह सकता हूं कि दिस इज d by dx ऑफ सम फंक्शन fx, क्योंकि y तो fx है ना? सो d by dx ऑफ सम फंक्शन fx मींस वी आर फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ y और fx विद रेस्पेक्ट टू x. तो नीचे dx मैं लिख रहा हूं यानी विद रेस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल. तो डिनोमिनेटर में जो भी है उसके रेस्पेक्ट में हम रेट चेंज फाइंड करते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एग्जांपल. सपोज 4th क्वेश्चन लिखते हैं. एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. क्वेश्चन सेज एन एच ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एक वेरिएबल क्यूब है, ओके, बदल रहा है. उसका जो एज है, सपोज एज अगर x है तो इसका रेट चेंज मुझे दे रखा है यानी dx by dt दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट? सो हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. मुझे क्या निकालना है कि dv by dt वॉल्यूम चेंज कितना है इसका
व्हेन x इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, है ना, एट x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर पे वॉल्यूम चेंज कितना है। तो वॉल्यूम होता क्या है क्यूब का, x क्यूब, साइड का क्यूब, राइट। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं बोथ साइड, सो विल गेट किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट dv by dt is equals to 3x square dx by dt, करेक्ट। दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 into 10 का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू 10 है, एट 10 निकालना है ना, into dx by dt व्हाट 3। सो व्हाट इज माय आंसर, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, एंड दैट इज द आंसर। इजी है ना, खाली हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज क्वेश्चन इज की a particle moves along the curve, a particle moves, this is, I think this is your 11th question, a particle moves along the curve 6y is equals to x cube plus 2। ओके, एक पार्टिकल है वो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, ये उस कर्व की इक्वेशन है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times as fast as the x कोऑर्डिनेट। हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं कर्व के ऊपर जिसके लिए जो y कोऑर्डिनेट है इट इज चेंजिंग 8 times as fast as that of the x कोऑर्डिनेट, यानी कि dy by dt जो है वो 8 times है किसका, dx by dt का। और हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स जहां पे ऐसा हो रहा है, कर्व पे जहां पे ऐसा हो रहा है, राइट। तो मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट कर लेता हूं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी गेट dy 6dy by dt is equals to 3x square dx by dt प्लस 0, 2 का 0 हो गया। तो dy by dt की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 6 into 8 dx by dt is equals to 3x square dx by dt, dx by dt और dx by dt कैंसिल हो गया, 3 to the 6 कैंसिल हो गया, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया और x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 4, राइट। तो दो मेरे पास x की वैल्यूज हैं, अब वो मैं कहां पुट कर सकता हूं, y में पुट कर सकता हूं, मेन फंक्शन में पुट कर सकता हूं, करेक्ट। सो एट x इज इक्वल्स टू प्लस 4 6y, या कहो y कितना होगा, 4 का क्यूब प्लस 2/6 यानी कि 64 प्लस 2 यानी 66/6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 11। तो कोऑर्डिनेट मेरा कितना हो गया, 4,11 पहला कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से एट x इज इक्वल्स टू -4, y कितना हो जाएगा, -4 का क्यूब प्लस 2/6 एंड दैट इज इक्वल्स टू -64 प्लस 2 विच इज -62/6। कैंसिल आउट करोगे सो दिस विल बी -31/3। कोऑर्डिनेट क्या आ गया, दिस बिकम्स -4, -31/3 एंड दैट इज माय आंसर। ये मेरे पॉइंट्स हैं जहां पर ऐसा हो रहा है, अंडरस्टूड। सो एक्सरसाइज आपकी बहुत इजी है, आप एग्जांपल्स ट्राई करें, एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस ट्राई करें, राइट। और अगर इस एक्सरसाइज में कोई डाउट आता है, इनकेस वैसे नहीं आना चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज बहुत आसान है, लेकिन इनकेस अगर कोई डाउट आता है तो वो हम ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस कर सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज की एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए आपको वॉल्यूम सरफेस एरियाज के फॉर्मुलाज याद होने चाहिए, जिसके लिए आप 10th क्लास की टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हैं, राइट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, उनके बिहेवियर के बारे में समझेंगे एंड विल आल्सो अंडरस्टैंड कि हम डेरिवेटिव्स की मदद से कैसे ये पता लगा सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, राइट। सो टिल देन आप अपना काम कंप्लीट करें। एक्सरसाइज 6.1 अलोंग विद द एग्जांपल्स आपको कंप्लीट करना है और साथ साथ जरूरी है कि आप लोग घर पे रहें, अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, घर पे रखें, राइट, खुश रहें साथ में, एंड थैंक यू सो मच।